दिव्या भी प्रेजेंट है। दिव्या के बाद कनक गुर्जर, खुशी गुप्ता, उसी के बाद मुस्कान भार्गव, मुस्कान के बाद पूर्वी, पूर्वी के बाद है प्रियांशु, संभव, शिवम, वैष्णवी भार्गव, ओके, स्वास्तिका नायक. So let us begin with chanting of Omkar 3 times. Sarah. So we are discussing the topic. This is the last topic of this business finance. Means sources में last है, and that is the institutional finance, है ना? Financial institutions. We have already discussed its brief discussion that government of India and state governments have set up certain financial institutions with the purpose of providing long-term, low-interest finance to the industry. The main purpose of these institutions is to help in industrial development of the country. So to promote industrial development of the country, these financial institutions are especially set up only to provide long-term loans to the industry. That's why these are called specific financial institutions. Bank is also a financial institution, but bank is not exclusively for industrial development. Okay, so these financial institutions, they are exclusively established to provide funds for industrial development. That's why they are called specific financial institutions or development banks. Okay, specific financial institutions or development banks. So some of the specific financial institutions are being set up by central government, and these institutions which are set up at the national level, they provide funds to all states, businessmen of all states, industrialists of all states, and some financial institutions are set up by particular state governments, and these financial institutions provide loans to the industries in that state only. Okay. Similarly, at world level also we have set up financial institutions which provide funds to the industry all over the world, but that is not in our syllabus. So first of all we have to discuss, और ये बता सकते हैं किस काम के लिए लोन देते हैं. These specific financial institutions provide loans for establishment of new industry or expansion or increasing the size of existing industry and modernization of existing industry. Modernization means replacing the old machines and equipment with the new machines and equipment. So creation, expansion and modernization of industry. For these three things, these specific financial institutions provide the loans. So let us discuss what are the merits of these financial institutions. First and most important advantage of these financial institutions is the long-term finance. The industry needs long-term finance because it takes a lot of time to set up an industry. So if loan is given for 2-3 years, that is not sufficient because that time is not even sufficient for setting up of the industry. So industries need long-term finance. So these financial institutions provide long-term loans to the industry which are not normally provided by commercial banks. Commercial banks नहीं देते हैं long-term finance. Okay. दूसरा है, besides providing loans, these financial institutions provide other services also to the industry like technical services, management services,
Okay. Consultancy services. So if industry needs some technical advice or some advice related to management issues, so these financial institutions have members in their panel, in their board, experts of different areas. So these experts help the industry to solve these issues, technical issues or management issues or consultancy in some areas. That is also provided by these specific financial institutions, okay, which is not normally provided by any other commercial banks. Okay. Third advantage is that obtaining long-term loans from these financial institutions add to the reputation of the organization. अगर आपको इसमें से किसी से लोन मिल गया तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज इट्स ए प्रेस्टीज पॉइंट, because these financial institutions follow very strict criteria and they give loan only to those industries which are financially viable, sound financial, sound, the industry which have brighter future, chances of success are more, then only they will provide the loan. So if you get the loan from any such institution, you can easily get loans from other commercial banks or other financial institutions. वो फिर आपको आराम से लोन दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि जब इस इंस्टीट्यूशन ने इसको लोन दिया तो उन्होंने सारी इंक्वायरी की होगी, मींस इट्स ए गुड कंपनी टू इन्वेस्ट. सो अदर investors or other people will easily give loans to your industry. So anyway we can say it adds to your goodwill or reputation. वैसे लोन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनसे लोन मिलना आपके लिए it adds to the goodwill of the industry. दूसरा होता है, एक और एडवांटेज है, easy repayment. Easy repayment means that it's a long term loan and this long term loan is repayable in installments. उसको पूरा पैसा एक साथ वापस नहीं करना है. So it is not a problem to repay because suppose इंडस्ट्री लगी 5 साल में, लोन दिया 15 साल के लिए, 5 साल तक कोई रिपेमेंट मत करो, 7 साल तक कोई रिपेमेंट मत करो, 7 साल के बाद आप रिपेमेंट प्लान कर सकते हैं कि जब हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी, पैसा आने लगेगा तो हम वापस करेंगे. तो यू कैन प्लान रिपेमेंट आफ्टर 7 years एंड इन इंस्टॉलमेंट, तो हम 7वें साल में, 8वें साल में, 9वें साल में ऐसे वापस करेंगे. दैट इज अलाउड बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो रिपेमेंट इज नॉट ए बर्डन. सो इजी रिपेमेंट and interest rate is also very low as compared to commercial banks. Commercial bank का जो rate of interest बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनका जो rate of interest होता है वो बहुत कम होता है as compared to commercial banks. And funds are made available even during the period of depression. Depression is a phase of economy where there is a scarcity of demand. Demand is falling, है ना? Production is reducing. Investors are not ready to invest money in the industry. At that time also these financial institutions provide loan to the industry. जब बाकी कहीं से भी पैसा मिलना मुश्किल होता है, उस समय भी इंडस्ट्री को लोन देते हैं. That is the big advantage for industry, that at the time of depression these industries can take the loan from financial institutions. Depression वर्ड तो सुना ना आपने? डिप्रेशन. अच्छा, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? इंसान को डिप्रेशन हुआ तो क्या हुआ उसका? सही राम, डिप्रेशन में क्या होता है इंसान के साथ में? सर वो बहुत दुखी हो जाता है और अकेला अकेला रहने लग जाता है. हाँ, तो इंडस्ट्री भी दुखी हो जाती है जब डिप्रेशन आता है इकोनॉमी में. तो इंडस्ट्री खुश कब होती है? जब बहुत डिमांड आती है ना, बूम पीरियड बोलते हैं. बूम पीरियड इज वेरी गुड पीरियड फॉर इंडस्ट्री. मार्केट के लिए अच्छा होता है, डिमांड बहुत आती है. अभी जो कोविड में क्या हुआ, कोविड में इंडस्ट्री में डिप्रेशन ही चला लगभग, डिमांड कम हो गई एकदम, बहुत सारे प्रोडक्ट में तो मार्केट ही बंद हो गया था. तो दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर इकोनॉमी. सो इसमें क्या हो, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, एक साइकिल चलेगा. फिर डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो लोगों को, इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को पैसा कम होगा, इनकम लेवल रिड्यूस होगा, इनकम लेवल रिड्यूस होगा तो और डिमांड कम होगी, फिर और डिमांड कम होगी तो और प्रोडक्शन कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. जैसे विशियस साइकिल दैट विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम. तो अच्छा है कि वो जल्दी रिकवरी आ जाती है, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी. So at that time sources of finance are very scarce. ऐसा मिलता नहीं, कोई इन्वेस्ट नहीं करता उसमें. At that time these financial institutions provide funds to the industry. ठीक है, इनके लिमिटेशंस भी हैं. पहला लिमिटेशन तो यही है कि these industries, these financial institutions follow very strict criteria to give the loan. They conduct all type of survey, inquiries, study of the industry, then only they give loan to the industry. So it's very difficult to take loan from
these specific financial institutions. You know, it's long procedure, expensive also, and so blindly they don't give loan to anyone. So they conduct many types of surveys, research और study of the industry, और उनको पक्का लगता है कि इंडस्ट्री अच्छी है, चलेगी, इसके चलने के चांसेस हैं, तो भी वो इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। दूसरा, देयर में भी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, जो लोन एग्रीमेंट करते हैं लोग, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ कंडीशन डाल सकते हैं। एक सबसे खतरनाक कंडीशन होती है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन। एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जब तक आप हमारा लोन नहीं चुकाओगे तब तक अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रॉफिट नहीं दे सकते। दैट कैन बी ए क्लॉज, सो दैट रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द कंपनी। उससे कंपनी की जो फ्रीडम कम हो जाती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड नहीं मिल पाता है। तीसरा इनका ड्रॉबैक है कि दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट देयर मेंबर्स, देयर नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, and that person will interfere in all the decisions, and you cannot take any independent decision without consulting this person. So that reduces, that curtails the operational freedom of the company. Company cannot take free decisions, and first of all they have to consult to that person, and if he agrees then only they can take that decision. So that is the interference in the company's matters by the nominee appointed by these specific financial institutions. और ये भी लिख सकते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, वर्किंग लोन चाहिए, तो दैट इज नॉट अवेलेबल बाय द स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब अगर आपके बुक है तो देखिए बॉक्स में एक लिस्ट दी है, हम पढ़ेंगे इस बुक लिस्ट को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं और किस ईयर में बना। ये जीके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें होता है। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं इंडिया में, कोई भी जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला इसमें दिया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट नाम है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाम से मालूम चल रहा है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस देता है। ओल्डेस्ट है हमारी कंट्री का, ये जुलाई 1948 में बनाया एज स्टेटरी कॉर्पोरेशन अंडर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? असिस्टेंस टुवर्ड्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी सारी कंट्री के हर पार्ट में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगना चाहिए। इंडस्ट्री शुड नॉट बी सेंट्रलाइज इन सम एरियाज, बट इंडस्ट्री शुड बी established in all parts of the country, so it gives loan for setup of industry in different locations. remote areas में ज्यादा देता है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं होती है वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा देता है। so balance regional development and encouraging new entrepreneurs to enter into the priority sector of the economy। प्रायोरिटी सेक्टर है, जिस चीज की शॉर्टेज होती है कंट्री में उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। तो उस एरिया में अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको इससे लोन मिल जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर में। ओके, आईएफसीआई हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री। अब दूसरा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 empowered the state government to establish state financial corporations। वो अपने स्टेट में in their respective regions for providing medium and short term finance to industries which are outside the scope of the IFCI। तो ये स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है अपने स्टेट में, और ये जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, जो कि IFCI नहीं देता है, क्योंकि IFCI तो लॉन्ग टर्म लोन देता है केवल। इट्स स्कोप इज वाइडर देन IFCI since the former covers not only public limited companies but also private limited companies, partnership firms and proprietary companies। okay, तीसरा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका नाम तो आप सबने सुना है ICICI। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत आता है इसका। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये प्राइवेट सेक्टर का ओनली ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए है। This was established in 1955 as a public limited company, ना? Under the Companies Act, ICI assists the creation, expansion and modernization of industrial enterprises exclusively in private sector। ये केवल प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है, it's exclusive for private sector। Industrial Development Bank of India (IDBI), it was established in 1964 under the Industrial Development Bank of India Act।
with an objective of coordinate the activities of other financial institutions, including commercial banks. The bank performs three types of functions, namely assistance to other financial institutions, direct assistance to industry, and promotion and coordination of financial technical services. तो एक तो ये दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है जो इंडस्ट्री को लोन देती हैं, दूसरा इंडस्ट्री को लोन देता है, और तीसरा टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये बंद हो गया लगभग, अभी बहुत इसका स्पेस है अभी लेकिन चल रहा है, बहुत पॉपुलर नहीं बचा, पहले बहुत पॉपुलर था एक टाइम में। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये यूनिट्स बेचते हैं। यूनिट मीन शेयर, 10-10 रुपए की यूनिट होती है इसकी, उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे पहले, पर इसमें कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, उसके बाद इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 अंडर द यूनिट ट्रस्ट इंडिया एक्ट 1963। The basic objective of UTI is to mobilize the company's saving and community's saving and channelize them into productive ventures। मैंने बताया 10-10 रुपए की यूनिट बेचते थे, तो जो छोटे छोटे लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, इनके पास बहुत छोटी सेविंग्स होती है, वो इसमें अपना पैसा लगाते थे, and that money was given by UTI to the industry as a loan। उस पैसे को ये इंडस्ट्री में लगाते हैं। For this purpose, it sanctions direct assistance to industrial concerns, invest in the shares and debentures, and participate with other financial institutions। Industrial Investment Bank of India, ये अभी नया 1985 में बना है। It was initially set up as a primary agency for rehabilitation of sick units। sick unit होती हैं जो बीमार होती हैं, यानी जो लॉस में चल रही होती हैं। sick unit means the industry which is continuously running in a loss, they are considered as a sick unit। तो उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए यानी उनको कुछ री इन्वेस्ट करके खड़ा कर पाएंगे, उसके लिए पैसा देगा ये। उसके लिए इसको बनाया 1985 में, और रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स, दे आर टू बी रिवाइव, जो लॉस में चल रही हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे कुछ पैसा, एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स, सो दिस विल प्रोवाइड द लोन टू देम। ओके, and was known as Industrial Reconstruction Corporation of India। It was recognized and renamed as the Industrial Reconstruction Bank of India in 1985, and again in 1997 its name was changed to Industrial Investment Bank of India। तो अभी इसका नाम है Industrial Investment Bank of India, 3 बार इसका नाम चेंज हो चुका है। The bank assists sick units in the reorganization of their share capital, improvement in management system, and provision of finance at liberal terms। इसको तो पता ही है कि जिनमें पैसा लगा रहा हूँ वो इंडस्ट्री पहले से बीमार है, इनकी रिस्क सबसे ज्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द कॉर्पोरेशन गिव्स लाइफ इंश्योरेंस कवर टू द पीपल इन इंडिया, बट ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है बाय वे ऑफ प्रीमियम। हमने पढ़ा था इंश्योरेंस में प्रीमियम्स आर पेड बाय पॉलिसी होल्डर्स, सो LIC इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द कंट्री। इनके पास जो पैसा आता है प्रीमियम के थ्रू, दैट दे इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री। सो LIC वाज सेट अप इन 1956 अंडर LIC एक्ट आफ्टर नेशनलाइजिंग 245 existing insurance companies। It mobilizes the company's community saving in the form of insurance premium and makes it available to industrial concern। तो ये उस पैसे को कंपनी के शेयर में लगाता है, दोनों तरह से फाइनेंस करता है, डायरेक्ट फाइनेंस एज वेल एज indirect finance। So these are the financial institutions set up by central government and state government। अब international finance। International finance मतलब if you want to take funds from outside the country, how can we take funds from outside the country? That is called as international finance। So we are not confined to domestic sources only, but industry can take funds from outside the country also। So these are called international financing। कौन कौन से सोर्स है इंटरनेशनल फाइनेंस में? एक तो कमर्शियल बैंक है ना, फॉरेन करेंसी लोन ले सकते हैं हम इनसे फॉर बिजनेस पर्पज, स्पेशली फॉर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो हम उनसे लोन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इंडिया में भी काम कर रहा है, इससे लोन ले सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक हैं जिनकी मैंने बात की थी, वर्ल्ड लेवल पे जो बनाए हैं। A number of international agencies and development banks have been emerged। These bodies provide long-term and medium-term loans। जो भी अभी हमने पढ़ा वैसे ही सेम कंडीशन इनकी है।
specific financial institutions हैं, they also provide long-term and mid-term loans and grant to the promote the development of economically backward areas in the world. लेकिन ये शायद इंडस्ट्री को लोन नहीं देते, गवर्नमेंट के लेवल पर लोन देते हैं, कंट्रीज की गवर्नमेंट को देते हैं. These bodies were set up by the governments of developed countries of the world at national, regional, and international levels for funding various projects. More notable among them include International Finance Corporation, IFC, Export Import Bank, and Asian Development Bank. ये है जो इनको देते हैं. और तीसरा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से हम पैसा ले सकते हैं, जैसे अपनी कंट्री में हम शेयर्स बेच के पैसा ले सकते हैं, वैसे इंटरनेशनल मार्केट से हम पैसा ले सकते हैं, है ना. सो दो होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है. जीडीआर बोलते हैं और एडीआर बोलते हैं. एक को बोलते हैं जीडीआर और एक को बोलते हैं एडीआर. ठीक है, तो ये मैं समझाऊंगा आपको दोनों. एक और था सीडीआर, वो हटा दिया इसमें सिलेबस में, तो अभी एडीआर और जीडीआर बचा आपके पास, है ना. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट and American depository receipt. Global depository receipts are used in any part of the country, any part of the world. Globe में कहीं भी आप उसको use कर सकते हैं. And American depository receipts are useful only or can be used only in America. That is why they are called American depository receipts. ये foreign currency convertible bonds हटा दिया है, अभी इस साल नहीं है सिलेबस में. तो ADR, GDR ये वो हम बात करेंगे, समझाऊंगा आपको कैसे काम करता है वो. उससे पहले हमें टॉपिक खत्म करने वाला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस हमको यूज करना चाहिए? दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. आउट ऑफ दीस मेनी सोर्सेज वी हैव डिस्कस. आपने ट्रेड क्रेडिट से लेके रिटेन्ड अर्निंग से लेके बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े. उसमें से हमको कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करना चाहिए? व्हिच फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर बाय सेलेक्टिंग ए स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस. किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा लेने से पहले हमको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए? तो सर्टेन फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है कॉस्ट. कॉस्ट के हिसाब से क्या करना चाहिए? वी हैव टू चूज कौन सा सोर्स यूज करेंगे, जो ज्यादा कॉस्टली है कि कम कॉस्टली है. विच सोर्स वी हैव टू यूज, मोर कॉस्टली और लेस कॉस्टली. ज्यादा महंगा लेंगे पैसा कि कम महंगा, कौन सा अच्छा है आपके लिए? लेस कॉस्टली. सो वी हैव टू कंसीडर द कॉस्ट. तो आपको देखेंगे कॉस्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि बोरोड फंड्स आर लेस कॉस्टली, ओनर्स फंड्स आर मोर कॉस्टली. अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल ज्यादा कॉस्टली है और लोन फंड्स जो होता है वो कम कॉस्टली है. ठीक है, तो कॉस्ट भी दो तरह की होती है. एक तो होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फंड्स. कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड यानी उस पैसे का लोन लेने में हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड. जैसे कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसको प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा, ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स. और फिर जो इट हैज टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फंड्स. जैसे डिवेंचर्स इशू की कंपनी ने, तो सेम प्रोसेस फॉर डिवेंचर्स. कंपनी हैज टू पे फॉर एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इन द न्यूज़पेपर्स, ब्रोकर्स कमीशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स. एंड इंटरेस्ट इज टू बी पेड, that is cost of using the funds. So we have to compare both of these cost of raising the funds and cost of using the funds, and the source which is cheaper we have to select that. तो जो सस्ता होगा दोनों में उसको हमको यूज करना चाहिए. That is advice, and we should select a source of finance which is cheaper in using cost and raising cost. दोनों में cost इसमें कम हो, हम उसको select करें. Especially using cost, क्योंकि वो बार-बार होगी. Raising cost तो एक बार की बात है, एक बार फंड रेज कर लिया तो फिर वो दोबारा नहीं होगी. बट यूजिंग कॉस्ट इज अ कंटीन्यूअस कॉस्ट दैट वी हैव टू कंसीडर. ओके, दूसरा है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स. सो शुड वी यूज ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स? फॉर दैट वी हैव टू सी वेदर वी आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, आवर कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रांग और नॉट, our operations are stable or not. यानी हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा. There is stability of operations or not. If we are financially sound, if we are certain, sure for regularity of our operations, then only we can go for borrowed fund. तो ये हमको लोन लेना चाहिए. If we are not certain about regularity of operations, our financial position is not sound, we should avoid
borrowed funds because it involves regular payment of interest and compulsory repayment of principal amount. अगर हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो हम वापस नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो हमको फिर ओनर्स फंड का यूज करना चाहिए. So that we have to see whether we are financially sound, our operations are regular or not. Form of organization मैंने बताया था, सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है. इनके पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं है, दे कैन नॉट यूज शेयर्स एंड डिवेंचर्स. तो वो क्या यूज कर सकते हैं? केवल ट्रेड क्रेडिट है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से, है ना, रिटेन प्रॉफिट कर सकते हैं. दे कैन यूज ओनली दिस सोर्स. इफ यू आर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, यू कैन यूज एनी सोर्स. कमर्शियल बैंक भी अवेलेबल है आपके पास, ट्रेड क्रेडिट भी है, शेयर्स, डिवेंचर्स, ऑल सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू. सो दैट यू हैव टू सी दैट व्हिच फॉर्म इज योर बिजनेस. आपका बिजनेस किस फॉर्म का बिजनेस है? सोल ट्रेड है तो लिमिटेड चॉइस है आपके पास, पार्टनरशिप है तो लिमिटेड चॉइस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो इट हैज लार्जर चॉइस टू रेज द कैपिटल. पर्पज एंड टाइम पीरियड, अब किस पर्पज के लिए चाहिए? वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए कि फिक्स असेट्स के लिए चाहिए? कितने टाइम के लिए चाहिए? लॉन्ग टर्म चाहिए कि मिड टर्म की शॉर्ट टर्म? अगर लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए और अगर आप कंपनी है तो आपको इक्विटी शेयर्स है, डिवेंचर्स है, उसको इशू करना चाहिए. इफ यू नीड वर्किंग कैपिटल, then you can borrow money from commercial banks. You can issue preference shares for short time or debentures for redeemable preference share or debentures for short time. So that we have to see that for which purpose or for what time do we need the funds. Accordingly, we have to select the source of finance. Okay, especially we must be very careful in financing the long-term projects by short-term source of finance. अगर long-term investment करना है और आपने पैसा शॉर्ट टर्म सोर्स से लिया तो बड़ी मुश्किल होगी आपकी, क्योंकि आपको बीच में पैसा वापस करना पड़ेगा. दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न. रिस्क प्रोफाइल है, विच सोर्स इज मोर रिस्की. कंपनी के लिए डिवेंचर्स ज्यादा रिस्की है क्योंकि उनको लोन फंड्स आर मोर रिस्की बिकॉज दे हैव टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट टू बी रीपेड. इक्विटी में कुछ भी नहीं देना उनको, ना तो इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना, ना प्रेफरेंस कैपिटल को लौटाना है. सो इक्विटी लेस रिस्की फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी हैव टू कंपेयर द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड वी हैव टू सिलेक्ट ए सोर्स व्हिच इज लेस रिस्की. इसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, दैट वी शुड नॉट सिलेक्ट. कंट्रोल है, कंट्रोल ओनली इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स. सो इक्विटी शेयर्स कैन डाइल्यूट योर कंट्रोल, है ना. सो वी शुड अवॉइड इक्विटी शेयर्स इफ वी वांट आवर ओन कंट्रोल फॉर लॉन्ग टाइम, है ना. अदर सोर्सेज डू नॉट change your control, so you can easily use any other source except the equity shares. So control consideration अगर आपका है तो आपको you have to avoid issuing equity shares. equity shares के अलावा बाकी sources का यूज करेंगे तो आपके कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, because debenture holders or preference shareholders, they do not have the voting rights, so they cannot change your control over the company. So your control will continue, है ना. So if you are worried about the control on the company, then you can issue only any source you can use except the equity shares. Effect on credit worthiness. Okay. Effect on credit worthiness means that whether your borrowing capacity in future will continue or it will reduce. It is reduced. So if you take secured loans, अगर हम secured loans लेते हैं, secured loans में क्या होता है कि हम अपनी assets को mortgage करते हैं. जैसे हमने पहली बार लोन ले लिया तो बिल्डिंग को मॉर्गेज कर दिया, अगली बार लोन लिया तो लैंड हमारे पास पड़ी थी उसको मॉर्गेज कर दिया. अब सपोज वी डोंट हैव एनी एसेट टू मॉर्गेज, तो फिर क्या होगा? फ्यूचर में हमको लोन और मिलेगा ही नहीं. नाउ वी डोंट हैव द एसेट टू मॉर्गेज, है ना. जो पहले की एसेट थी वो तो हमने मॉर्गेज कर दी दूसरे के साथ में, तो जो भी लेंडर होगा वो हमको लोन नहीं देगा. सो इन दैट कंडीशन अवर borrowing capacity will be reduced in future, credit worthiness will be reduced in the future. So we should not borrow in any such way that will reduce our borrowing capacity. जिससे हमारी borrowing capacity कम होती है, that method we should not use for borrowing. Okay. उसके बाद है flexibility and ease. Flexibility मतलब होता है कि आप जरूरत पड़े तो पैसा और ले सकते हैं और जरूरत नहीं है तो पैसा वापस कर सकते हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स आर वर्स्ट. इक्विटी कैपिटल जो होती है कंपनी को, उसको कंपनियां कम नहीं कर सकती. बट डिवेंचर्स है, लोन्स है, they are flexible source of finance because if you don't need funds you can return it back. अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप वापस कर दीजिए पैसा, डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर दीजिए. You can redeem the debentures, you can repay the loan, that can be done. But equity capital cannot be reduced.
सो दैट इज इनफ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और टैक्स बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से आपको देखेंगे तो डिवेंचर्स या बोरोड फंड्स आर बेनिफिशियल बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। एक दिन मैंने समझाया था आपको कैसे इससे फायदा होता है। हाउ इज द इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल? बिकॉज एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स जो इनकम होती है कंपनी की उसमें से पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स निकालते हैं। बट डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। अगर आपने डिविडेंड दिया तो टैक्स में से माइनस नहीं होगा, दैट यू हैव टू पे टैक्स ऑन द होल इनकम। सो वी हैव टू सी, हालांकि बड़ा कंसिडरेशन नहीं है टैक्स बेनिफिट, बट if it possible then we should choose such source in which we will get the benefit in the tax. So from this point of view, borrowed funds should be preferred so we can get benefit in the income tax. Okay, so these are the points which we have to discuss. We have to consider at the time of selecting a source of finance. कौन सा source of finance हम use करेंगे? So we have to consider these facts in mind so we can select a better source of finance for ourselves. Okay, so this chapter is over. Now after this chapter, स्मॉल बिजनेस का सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले वो कंटेंट इकट्ठा कर लूँ जो अभी इस बार चेंज किया है। अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड मोदी गवर्नमेंट लॉन्च इन न्यू स्कीम दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत। सुना है क्या आपने? आत्मनिर्भर भारत अभियान, है ना। अंडर दिस स्कीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम द मैक्सिमम फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज ऑन एसएमएसई सेक्टर। एसएम कौन सा है? स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड एमएसएमई सेक्टर। हाँ, उसको एमएसएमई सेक्टर। सो मैक्सिमम फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज ऑन दिस एमएसएमई सेक्टर। और जो हमारा स्मॉल बिजनेस है पूरा का पूरा उसी पे है, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर ही है। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस 20 लाख रुपीस पैकेज, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख नहीं 20 लाख करोड़ रुपीस पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है अंडर दिस स्कीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम, है ना। पर्पज क्या है इसका? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब हुआ इसका। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ? किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, डोंट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। हम जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पे उसको खत्म करें। एनी इन प्लेस ऑफ इंपोर्टिंग डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लेट अस प्रोड्यूस देम इन अवर ओन कंट्री। हम उनको अपनी कंट्री में बनाए खुद, तो हम आत्मनिर्भर भारत हो जाएंगे, है ना। तो हम जिन जिन एरियाज में डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे, और कई तो फालतू के एरियाज में हम आराम से बना सकते हैं, पर भी हम बाहर से मंगाते हैं। तो अपनी कंट्री में स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे उससे। एक तो हमारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा, जो बैकवर्ड रीजन है वो डेवलप हो जाएंगे, वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे। तो तीसरा होगा कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है ना, बाहर से जो पैसा जाता है हमारा वो रुक जाएगा। स्पेशली चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि टॉयज का बिजनेस है इंडिया में, जितना टॉय मार्केट है उसमें 90% शेयर चाइना का है। यानी आप हमारे यहाँ बच्चे जो खिलौने यूज करते हैं 90% खिलौने चाइना से आ रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपी में एक बड़ा, नोएडा में कहीं एक बड़ा इंडस्ट्री लगा रही है गवर्नमेंट, टॉयज बनाएंगे डिफरेंट टाइप के। तो ये हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं। तो हम अपना पैसा बाहर वालों को क्यों दें, और उन कंट्रीज को दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दैट इज द पर्पज। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत स्कीम। अच्छी स्कीम है, और अगर सक्सेसफुल हुई तो कई सेक्टर्स में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा रियल सेंस में विद इन 5-10 ईयर्स। तो इसमें पूरा का पूरा फोकस गवर्नमेंट का जो है वो एमएसएमई सेक्टर पर ही है। एंड गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर। इस बुक में जो डेफिनेशन दी है वो इसके लिए पुरानी हुई, बेकार हो गई। हम पढ़ लेंगे इसको, मतलब किसी काम की नहीं है वो, एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है, चलो यही हमारी बुक में दी है, बट इट इज बीइंग चेंज, अपडेटेड। तो उसका इन्वेस्टमेंट की लिमिट है बेसिकली। जैसे अभी किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ की लिमिट थी, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। सो दैट डेफिनेशन हैज बीन चेंज। सो आई विल कलेक्ट द मटेरियल, आई विल सप्लाई दैट मटेरियल टू यू आल्सो। सो वी विल स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम न्यू मटेरियल, है ना। नया मटेरियल इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अगली साल की बुक में तो आ ही जाएगा वो नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट जो एनसीईआरटी वाली बुक में भली नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशन है वो तो उसको चेंज कर देंगे। सो दैट डेफिनेशन इज बीइंग चेंज। तो अभी हम इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस, और स्मॉल बिजनेस के बाद इंटरनेशनल बिजनेस।
ना। तो 2 चैप्टर हमारे बच्चे बड़े इसमें, एक स्मॉल बिजनेस है और एक इंटरनेशनल बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस में वही है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फिर आपका ये शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन शॉप कितना है, और इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन ट्रेड जो आएगा हमारा उसका है। ठीक है, सो दैट वी विल कंटिन्यू, वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। अभी तो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ अकाउंट कंप्लीट पहले करना है। डेप्रिसिएशन हमारा लगभग हो गया है, बस प्रैक्टिस बाकी इस चैप्टर की, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो डेप्रिसिएशन के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए आपके बुक में, वी विल आल्सो कंटिन्यू टू सॉल्व। तो आज 5 तारीख हो गई है, आपकी छुट्टियां कब से स्टार्ट हो रही है? 12 से स्टार्ट हो रही है शायद आपकी छुट्टियां। दिवाली ब्रेक कब से आप लोग का? 12 से है ना? 12 से लेके 12, तो अभी हम लोग 2-3 दिन स्कोर करेंगे। आज थर्सडे है, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और करेंगे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, और मैक्सिमम मंडे को करेंगे ना। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसमें। ठीक है, तब तक इसका इंटरनल ट्रेड भी हो जाएगा। तो बिजनेस स्टडीज तो आपका मोस्टली नवंबर में तो नहीं होगा, क्योंकि फिर वो छुट्टियां पड़ गई, हो सकता हो जाए खत्म नवंबर में, दिसंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा बिजनेस स्टडीज आपका। अकाउंट्स हम कंटिन्यू करेंगे, फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा हमको, बिजनेस स्टडीज का खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम को अकाउंट्स के लिए यूज कर लेंगे। सो दैट वे तो जनवरी तक आपके जनवरी तक दोनों सब्जेक्ट आपके ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ओके, सो आई थिंक, हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर जो अकाउंट में प्रेजेंटेशन करना है हमको, जी जी, उसमें मेरा टॉपिक सब्सिडरी बुक्स है। क्या है? सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सर तो सब्सिडरी बुक के बारे में लिखिए, फिर उनकी क्लासिफिकेशन मुझे बताने हैं क्या सर? हाँ उसका जो भी टॉपिक आप ले सकते हैं, 3 मिनट के लिए मीनिंग बता सकते हैं, क्लासिफिकेशन बता सकते हैं, कोई बुक बना के बता सकते हैं कि कैसे बनाते हैं सब्सिडरी बुक, हाउ टू प्रिपेयर परचेज बुक, हाउ टू प्रिपेयर, दैट यू कैन एक्सप्लेन। ओके सर। तो आपको आप टॉपिक आपके ऊपर छोड़ दिया ना, इसलिए मैंने, क्योंकि मैं ये बताता कि ये बनाओ तो थोड़ा बहुत लिमिटेड हो जाता, तो आपका चॉइस है, थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल लगता है जो टॉपिक आपको, उसमें से वो ले लीजिए। सब्सिडरी बुक में नहीं, ओपन है पूरा चैप्टर आपके पास, और उस चैप्टर में से जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जहां आप अच्छे से समझा सकते हैं बाकी लोगों को, ले लीजिए बस में से। ठीक है, यस सर। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ भाई दक्ष, साईराम, दक्ष है क्या? सर। हाँ दक्ष, कोई डाउट है क्या दक्ष? नो सर। नहीं है, चलो बढ़िया है, अच्छा, ठीक है, ओके। सो कंटिन्यू टू स्टडी, पढ़ते रहो, अपना मेहनत करो और अच्छा करो। देखते हैं असेसमेंट में क्या आता है इस बार। हो सकता है 3rd असेसमेंट आपका स्कूल में ही हो जाएगा, गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो हम स्कूल में करेंगे नेक्स्ट असेसमेंट, इसके बाद अगर स्कूल खुल जाते हैं तो, बट अभी तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, साईराम, लेट अस हैव शांति पाठ, देन यू कैन लीव। ओम शांति शांति शांति। साईराम। साईराम सर, थैंक यू सर। साईराम सर। साईराम 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 सर। साईराम। सर। हाँ जी, सर वो आपने बिजनेस के जो टॉपिक्स दिए थे आपके पास लिखे हैं क्या सर? अब प्रांत को मुझे व्हाट्सएप पर डालना, पर मैं याद दिलाऊं तो मेरे पास इधर नहीं है पेज, को मैं डाल दूंगा तुम्हारे लिए ना। यस सर। सर वो लिख नहीं पाया था मैं उस वक्त। कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा ना। यस सर। साईराम सर। साईराम।